So Aryan, just to start with, you know what exactly we are doing. Podcast record कर रहे हैं अपन, right? Yeah, And this podcast is all about you, how you started your journey, and how sun also helps you, right, in the got journey, it. right? So Got it. Adityom vibrations is the topic, and your AI, obviously, because technology is part of our culture now, right? We have to adapt with it and move along with that, right? So just to introduce you to the audience as well, if you have any questions, we'll cut down everything, that's fine, but if you have any questions, you can ask in the between as well. Okay. Got it. Got it. I will. So just to start with the conversations, Aryan, to introduce yourself in my words, because you only provided me the description and everything about you, right? Because audience would would be interested आपसे जानने में, right? कि भाई आप क्या करते हैं, and as a chief technology officer at the Tensax Innovation Lab, where you build the machine learning, the artificial intelligence, which you talk about day in and day out. You're living that, right? And Aryan has Aryan expertises in the AI and machine learning since 2017, and starting from Stanford University and receiving. He also received the most likely to invent the next big thing prize winner from Massachusetts Institute of Technology in 2018. So with his team of 28 AI devs at his AI lab, Aryan has built a computer vision with his AI agents and is on to developing the budding AGI AI technologies, which is the artificial general intelligence, right? Where technology can speak with human, right? Like how what work which humans are doing, Aryan is working on that. That technology can also do that work, right? So Yes. Aryan, so this was your intro, and the first question which I would like to ask you to start with the podcast, right? How you understand how AI and technology helps us to harness the power of sun as well, right? Because it's all related to vibrations, and sun helps in healing as well. So how AI and sun is related to our healing and for our personal growth? तो ये दोनों कैसे अपना एआई और सन आपस में मिलाकर अपनी पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग किस तरीके से करता है? आई वांट टू नो फ्रॉम यू। जी, मैं सबसे पहले सन की बात करना चाहूंगा। या सन या प्लीज। पूरे हमारी पूरी एग्जिस्टेंस में सन का बहुत बड़ा रोल है। सन अगर नहीं होता तो कोई लाइफ नहीं होती, कोई प्लेनेट से एक सेट ऑर्बिट में कुछ भी नहीं, कुछ फॉर्मेशन नहीं होती अगर सन नहीं होता तो। सन ने ही एक डायरेक्शन, एक एनर्जी और लाइफ दी है पूरे सोलर सिस्टम में। और हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो स्टार्टिंग से अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहे हैं। जैसे आप पिछले हजारों सालों की बात करें तो हमने एग्रीकल्चर, सस्टेन्ड हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सब चीजें हमने इन्वेंट करी, फैक्ट्रीज इन्वेंट करी ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, फ्री हो पाए। और जब हम फ्री होते हैं तब हमें क्या करना, चीज हम कर पाते हैं, हम अपने आप की सुन पाते हैं। सो सन ना हमारी कॉन्शियसनेस का कारक भी है यहीं पे, क्योंकि उसने सब चीजों को रोक के रखा है और उसी की वजह से अर्थ पे लाइफ हो पाती है। और उसी हिसाब से जैसे हम सन की एनर्जी लेते भी हैं तो बायोलॉजिकली भी वी गेट वेकफुलनेस, दैट इट सेट्स आवर सर्केडियन रिदम। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ दैट एनर्जी कमिंग इनटू आवर लाइफ, वी गेट टू अ पॉइंट वेयर हमने जो चीजें करी, from the point of building the technology, that हम्म। gave us the free time as a species to express ourselves and to get to the next step. अगर मान लीजिए आज हमारे पास सस्टेन्ड हाउसिंग या एग्रीकल्चर हमने एज अ टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट किया होता तो आज हम खाना उगाने और खाना ढूंढने में पूरे समय लगे होते, या जबकि आज हम ये बात कर पा रहे हैं। तो वही एनर्जी आज के समय में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज
हैं वो है एआई डेवलप करने की। एंड हाउ इट गॉट टू दैट पॉइंट इज, हमने हमारे शरीर के एक एक पॉइंट के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। लाइक वी हैव बिल्ड टेक्नोलॉजी फॉर आवर फीट विच इज ऑल द ट्रांसपोर्टेशन मशीन्स, वी हैव व्हीकल्स, कार्स, we've built machines for our shoulders, the cranes and construction equipment and all of those things. We've built things for our hands. We even have 3D printers, everything. Now we've gotten to a point where we can make a machine for the mind, so that we don't have to use the mind as a tool for survival. We can use it for freedom and creative expression. We can give meaning to things rather than just surviving on the basis of the conditions that one is supposed to be at. AI gives us an opportunity to do all of that. मतलब हम ह्यूमन स्पीशीज की सारी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो उसके फ्री टाइम को और उसकी उसके आत्मबल को बढ़ाने के लिए हुआ है। हम पहले मैन्युअली कोई चीज करनी पड़ती थी। मेहनत करना बुरा नहीं है, पर मेहनत से जो कई बार बहुत ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति को तंग होना पड़ता है, वो चीज से छुटकारा हमें टेक्नोलॉजी देती है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे सन की जो एनर्जी है वो ही कहीं ना कहीं हमें अलाउ करती है कि हम खुद जो करना चाहते हैं वो बना सके। और टेक्नोलॉजी फील्ड में दिस इज अ मेजर रिक्वायरमेंट। Otherwise, you will just end up copying what other people are doing. In order to express yourself and think freely, you need that energy where you are comfortable and you are becoming the source like the sun. Those are certain principles which one can learn from the entity sun. Because उनको आप देखो तो हर समय एक ही प्रकार से वो अपनी ऊर्जा देते हैं, हर किसी को अपनी ऊर्जा देते हैं। और ऐसे पॉइंट पे हैं वो कि उनको कोई भी, चाहे कोई दूसरा प्लेनेट भी या कुछ भी, उनको कुछ दे नहीं सकता, वही सबको देते हैं सारी एनर्जी, सारी लाइट का सोर्स। और लाइफ धरती पे उन्हीं प्रिंसिपल्स पे रिवॉल्व करती है। जैसे जब सन एक पर्टिकुलर कंडीशन में होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, तो सारे फ्लावर्स उसी टाइम पे खिलेंगे। Yeah. वैसे हम ह्यूमंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो उस एनर्जी से कोरिस्पॉन्ड करती है, उस एनर्जी से रिलेट करती है, और हम उस एनर्जी की रिस्पेक्ट करते चलते हैं, तो वो हमें एक अच्छी पोजीशन में रखती है वेयर वी आर एबल टू डू मोर, एक्सप्रेस आवरसेल्व्स बेटर एंड फॉलो व्हाट आवर पाथ इज। दैट इज अ बिग थिंग वेयर द एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य का जो प्रकाश है, हमें हमारी लाइफ में, पर्टिकुलरली आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हमें हेल्प कर सकती है। एक और चीज है कि हमें इस समय पे नए तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है उनसे बहुत सारी चीजें बन सकती है। मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो हम रेगुलरली हम बना रहे हैं। ऐसे बॉट्स जो लोगों की सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए वो गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे आपका कोई भी आपका काम हो। फॉर एग्जांपल आपको लाइसेंस रिन्यू कराने जाना है, तो वहां पे इस तरह के बॉट्स आपकी 24 24 घंटे सेवा कर सकते हैं। किसी और कंपनी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दीज बॉट्स कैन सर्व यू। देर आर बॉट्स जिनसे आप बात करोगे आपको लगेगा कि एकदम नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, Yeah. क्योंकि उनकी वॉइस भी आजकल काफी अच्छी है। और वॉइस के साथ साथ उनकी जो मेमोरी एबिलिटी है, उनके पास परसिस्टेंट मेमोरी है। जैसे आपने उनसे उस बॉट से एक बार बात की, उसे आपका केस याद रहेगा हमेशा, Yeah. और वो आपकी प्रॉपर तरह से सेवा कर सकता है। तो ये तो हुई कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस। रिसर्च वगैरह में भी ये काफी मदद कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। कई लोगों को रेयर डिजीजेस होते हैं जिनके लिए दवाई को मॉडिफाई करना पड़ता है Yeah. ताकि ये उनको फिट हो। तो these there are certain genetic conditions which cannot be mitigated using regular medications. It requires certain altering to the medication. Mm-hmm. उस प्रोसेस को जब अपन मैनुअली करते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपको रन करने पड़ते हैं और सिमुलेट करने पड़ते हैं। कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति की लाइफ एआई की वजह से बच गई, क्योंकि वो सारे सिमुलेशंस, प्रोटीन फोल्डिंग सिमुलेशंस उस एआई एल्गोरिदम ने करे थे, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द पर्सन वाज सेव्ड। तो ये चीजें हमारी जो
फैकल्टीज हैं, साइंटिफिक फैकल्टीज, वर्किंग फैकल्टीज, इन सब चीजों को ये बढ़ाता है। या तो हमें ये एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, हाँ, हमारे सारे काम को करने के लिए। सो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी विच वी हैव, लाइक। एंड आई थिंक जितने भी लोग अपने अपने फील्ड में, हमारी ऑडियंस में से अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट में हैं, तो आप ये देखिए कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे लोगों को और चीज़ें दे सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ एज अ टेक्नोलॉजिस्ट कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। और जो जिस भी सेक्टर में हमारी ऑडियंस काम कर रही है, मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आप अपने अपने जो ग्राहक है उनको ऐसे फीचर्स दे सकते हैं ताकि उनको आराम हो, ताकि उनको और सहूलियत हो। और आप अगर किसी सर्विस इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। अ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चैट जीपीटी ज्यादातर लोगों ने यूज किया हुआ होता है। उसके अलावा जो उसके 2023 में जो चीजें चल रही हैं, आप मानिए कि चैट जीपीटी को आपने एक दिया, उसके आगे 10 पॉइंट्स पे रिसर्च वो खुद करके ले आए। तो इस तरह की चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं, ऐसे कई टूल्स हैं जिन्हें आप यूज करें। तो आप चाहे जॉब में हो, जिस भी फील्ड में हो, आप उनको यूज कर सकते हैं, ताकि आप किस लिए, ताकि आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन में बेटर हो। और जब व्यक्ति अपने सेल्फ एक्सप्रेशन में बेटर होता है, तो वो अपने आप औरों को दे पाता है। या वो उसके उसके पास इतनी प्रोडक्टिविटी और इतनी अबंडेंस होती है कि उसकी उसकी जो प्रोडक्टिविटी, उसका जो रिजल्ट है, वो औरों तक अपने आप जाता है। वो लोगों की हेल्प भी कर सकता है, वो अपने आप अपनी फैकल्टीज को एक्सपैंड कर सकता है। और ये चीजें हैं जो हम सूर्य से सीख सकते हैं। मैं रेगुलरली सूर्य की, कोई जैसे लोग कहते हैं कि सुबह उठ के आप जल चढ़ाओ, या मैं या इवन ये भी नहीं कर पाता कि, वैसे तो कहते हैं करना भी चाहिए कि आप सनराइज से पहले उठ जाओ, और उठते उठते आप सन सन को नमन करो सुबह उठ के। अब मैं मेरे से रोज नहीं हो पाता, बट मैं जब भी करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे मतलब एक सेटिस्फेक्शन आता है उस चीज को करने से। या नेचर के जो एलिमेंट्स है ना, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करते हैं। फ्रॉम अ बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सुबह उठ के सनराइज देखोगे, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपको वो चीज एक एक अच्छी फीलिंग देती है। और यही नेचर के एलिमेंट्स हमारे लॉन्ग टर्म हैबिट्स एंड नेचर्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी की सूर्य की एनर्जी मजबूत है, तो व्यक्ति अपनी बात रख पाता है, या व्यक्ति अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए काम कर पाता है, व्यक्ति दूसरों के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। ये चीजें उस एनर्जी के साथ काफी हद तक पॉसिबल है। Great, RNG. So AI and technology, vibrations of sun, this is all interlinked, right? Everything is interlinked. And the freedom, the self-expression which you talked about, right? ये चीजें practice से आती है, right? And I'm sure जितनी AI की practice आपने करी होगी from technology standpoint, right? सन भी वही चीज चाहता है सबसे, राइट? प्रैक्टिस करो, जितना भी हो डेली प्रैक्टिस करो। एंड द ब्यूटी ऑफ सन इज कि इट्स देयर ओनली, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, राइट? सन की एक चीज आती है, अबंडेंस। एग्जैक्टली। जैसे ना, कभी आप बात करें तो जो डेली मेहनत वाली चीज है, वो थोड़ा सा शनि में आता है। वो एनर्जी भी जरूरी है, वो है या कि आपको एनजाइटी के अंदर, प्रेशर के अंदर डेली मेहनत करनी है। पर सन जो है ना, वो राजा है। और राजा कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कभी लायन को भी देखा हो, या जिसको जंगल का राजा मानते हैं। वो एक बार शिकार करता है, और उसका 4-5 दिन का आराम से काम हो जाता है, उसका लाइफ स्टाइल ऐसा है। बट वो अपने काम में इतना अच्छा है कि वो एक ही बार में अपना सारा काम कर देता है, अपने परिवार का भी काम करता है। या या तो ये बात है कि सन के पास एक अबंडेंस की एनर्जी है। या और जो व्यक्ति अपने लाइफ में उस एनर्जी को मजबूत रखता है, वो भी हमेशा अबंडेंस में रहता है। उसको कभी स्केर्सिटी, या उसको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मुझे ये करना ही करना है, या मेरे काफी मैं पीछे चल रहा हूँ। वो व्यक्ति आगे चलने वालों में बनता है। ये या चीज मेरे को देखने से लगती है कि जो व्यक्ति इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मजबूत रखता है ना, वो आगे चलने वालों में रहता है। उसको मेहनत करना भी पसंद होता है। मतलब ऐसे नहीं कि उसको मेहनत करनी पड़ती है, वो थोड़ा आगे, लाइन में आगे रहता है।
या ये चीज मुझे लगती है। Absolutely, RNG. I completely agree with what you mentioned. कि sun is the source of everything, right? Abundance वहीं से आती है because वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ जो अपन देख पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं, अपने पांच तत्व देख पा रहे हैं, it's coming from our star only, which is sun, right? And the second question which I want to ask RNG is it's related to AI. Since AI deals in data and patterns, right? How can AI assist individuals in recognizing and aligning with their natural rhythms? जो vibrations होती है, like people talk about vibrations a lot these days, laws of attractions and everything is all over the social media. What exactly आपका क्या कहना है कि जो AI और सन की एनर्जीज है वो नेचुरली अलाइंड होके चलती है या फिर देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस एज वेल? मैं एक अध्यात्म के एंगल से आंसर करूंगा पहले, या फिर एक मैक्रो पर्सपेक्टिव दूंगा, और फिर एक माइक्रो पर्सपेक्टिव दूंगा, छोटे छोटे टूल्स जो बनाए जा सकते हैं। या सबसे पहले ना, हमारे भारत देश में एक ऋषि हुए थे, पतंजलि। हम्म। उन्होंने कुछ चीजें कही थी कि आत्मा के प्रकट होने में कुछ चीजें ना दिक्कत करती हैं, मतलब वो उसको उसमें बाधाएं हैं। उन या बाधाओं में पहला आता है बॉडीली डिस्कम्फर्ट। अगर आप टेक्नोलॉजी का राइट यूज कर रहे हैं तो आपको, मान लीजिए, वो मेडिकल साइंस में हो सकता है, चाहे आप अपना पीरियोडिकली ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, आप लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज करके अ, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ताकि आप या आप स्वस्थ रहो। इसमें कुछ और चीजें भी है, जैसे हमने 4 साल पहले एक ऐसी एआई बनाई थी, वो आपकी सिर्फ रेटिना को स्कैन करके, रेटिना स्कैनर्स होते हैं, जैसे आप आई टेस्ट कराने जाते हो ना, रेटिना स्कैन को देख के बता देती थी कि आपको डायबिटीज है कि नहीं, विद 80% एक्यूरेसी। क्योंकि जब डायबिटीज होती है तो दिखना कम हो जाता है, वो रेटिना डिसॉल्व होने लगता है और उसमें स्पॉट्स बन जाते हैं। तो इस तरह की चीजों में हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जहाँ पे एआई हेल्प कर सकता है डिजीज को होने से पहले डिटेक्ट करने में। बाद में तो पता तो हमें चल ही गया, पर डिजीज को बनने से पहले उसे डिटेक्ट करने में और प्रिवेंशन में, मतलब पहले, और उसमें बहुत सारी चीजें आती है, आपकी डाइट, आपकी सारे जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट पे आप ऑटोमेटिक तरीके से यूजिंग एल्गोरिदम्स एटलीस्ट ये पता लगा लो कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज डेवलप तो नहीं हो रही। या तो अपना पहला एस्पेक्ट हो गया बॉडी डिस्कम्फर्ट। दूसरी चीजें होती है अपनी अज्ञानता, विच इज फॉल्स नॉलेज। फॉल्स नॉलेज ज्यादातर आप देखो, जब व्यक्ति के पास अबंडेंस नहीं होती ना, जब ही आती है। या टेक्नोलॉजी एंड सन की जो एनर्जी है, सेल्फ एक्सप्रेशन की, आगे रहने की, अबंडेंस की, उस चीज में जब व्यक्ति रहता है, मान लो आज की डेट में भी, आप फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट राइटर हो, हम्म। और आप लेटेस्ट एआई टूल यूज कर रहे हो, आप आगे रह रहे हो अपने फील्ड में, आप सेल्फ एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हो, तो आपकी वो एनर्जी मजबूत है। या इस केस में आपका कोई अज्ञान होने के चांसेस कम है अपने फील्ड के अंदर, तो एटलीस्ट। तो फॉल्स नॉलेज को हम टेक्नोलॉजी के राइट यूज से कम कर सकते हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी के अंदर रहते हो, और वो आप किसी भी फील्ड में हो चाहे, जैसे मैंने आपको कंटेंट राइटर का एग्जांपल दिया, या वैसे आप कुछ और भी ले सकते हो। लेट से आप स्कूल टीचर हो, और अब आप अपने काम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, आप जैसे चैट जीपीटी जैसा बॉट यूज कर रहे हो जिससे आप क्वेश्चन पेपर्स बना सको, तो अब हम्म। आप वहां पे अबंडेंस स्टेट में चल रहे हो। आप अपने फील्ड के में टॉप परफॉर्मर्स में आ रहे हो, क्योंकि आप एडवांस चीजें यूज कर रहे हो, और अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने अपने मास्टरी के लिए आप काम कर रहे हो। तो उस केस में ना, आपको अपने फील्ड में आप पीछे नहीं रहते हो, तो आप आप अपने आप में कंफर्टेबल रहते हो। अ, और चीजें थी आपकी रूटीन, फिर आपके जो स्टेप्स आते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारण या ध्यान समाधि, वो चीजें व्यक्ति जब भी कर सकता है जब वो सर्वाइवल की चीजों से फ्री हो जाए।
हम में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में काफी हद तक यही डिफरेंस है। एनिमल्स अपनी लाइवलीहुड तक ही मैनेज कर पाते हैं। या मतलब उनको काफी उनको अपनी थिंकिंग कैपेसिटी, चाहे कोई हंटिंग एनिमल है तो हंटिंग में फुल, जैसे चीता को भी बहुत भागना पड़ता है, सबसे तेज भागता है, बट वो उसकी मतलब तीन में से एक ही शिकार वो सक्सेसफुली करता है, या फास्टेस्ट है फिर भी। ह्यूमंस को जो भी ऑल माइटी यूनिवर्स ने, परमात्मा ने ये एनर्जी दी है कि वो अपनी नेसेसिटी से आगे भी जाके काम कर सकते हैं अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। सर्वाइवल मोड से आगे आना है अपने को। दैट्स व्हाट। प्रिसाइसली, प्रिसाइसली, और यहाँ पे ही टेक्नोलॉजी हमें हमारी हेल्प करती है। तो अब मेरे आंसर का जो सेकंड पार्ट है, एट अ मैक्रो लेवल, जब व्यक्ति अपने स्ट्रगल से फ्री होगा, उसके हम्म। बाद ही वो अपने अपने सेल्फ एक्सप्रेशन और चीजों से को पे काम कर पाएगा। करेक्ट। जैसे आपने कभी देखा हो तो मतलब हमारे यहाँ पे जितनी भी ऋषि होते थे उनको इस तरह से दिखाया था कि वो काफी अपनी ध्यान तपस्या में लगे रहते थे, तो उनके पास वो फ्री टाइम था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। या उनके उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज थी कि उनका खाना पीना रहना करना सारी नॉर्मल चीजें अपने आप टेकन केयर ऑफ होती थी। वो चीज हमें टेक्नोलॉजी दे सकती है। और चाहे कोई ऋषि हो या आज के जमाने का साइंटिस्ट हो, आप ये देखना कि वो कितना टाइम अपने सेल्फ एक्सप्रेशन में दे पाते हैं। या तो दैट इज वेयर इट ब्रिंग्स अस। एंड व्हेन यू टॉक इन द थर्ड एस्पेक्ट, व्हेन यू टॉक ऑफ हाउ द इंडिविजुअल वुड गेट इट, आई वुड से कि आप आज की डेट में भी वो चीजें, वो टूल्स को यूज कर सकते हो। आपके जब आपका जब पर्सपेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन से काम करने का होता है, ना कि भाई मेरे को ये कहा है मेरे को करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई जगहों में टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है, या मान लो यूएस के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम होता है। हम्म। सारी आपकी चीजें डिजिटाइज होती हैं, और वो डिजिटाइज होती हैं तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। उसका आप एक रिकॉर्ड रहता है कि भाई इस टाइम ये दिखाने आया था पर्सन, अब दोबारा दिखाने आया है, थर्ड टाइम दिखाने आया है, ये इसकी हिस्ट्री है, वो चीजें ट्रैक हो पाती है। उसका अडॉप्शन यूएस में 80% से ज्यादा है। बहुत छोटे क्लिनिक्स हैं जो नहीं रख रहे हैं, बाकी तो हर जगह पे है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे है कि जब मतलब मैं नहीं कह रहा हर जगह, कुछ जगह कर भी नहीं है, बट एक बात होती है अबंडेंस से काम करने की, एक बात होती है कि वो अपने आप के सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, खुद की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। फॉर सम रीजन वो एनर्जी इस सेक्टर में वहां पे है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ एटीट्यूड ये हो सकता है कई बार कि भाई अनटिल अनलेस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, या we will not think of improving our things। तो जब तक आप आगे चलने का नहीं सोचोगे तो आप राजा कैसे बनोगे? सो ट्रू। सो ट्रू आर्यन जी। आप अगर यही करोगे कि मेरे को बेसिक से बेसिक, मेरे को जो कह रहे हैं लोग आसपास देखने को मिल रहा है, उसमें बस जितना एब्सोल्युटली नेसेसरी है उतना करो, तो आप राजा कैसे बनोगे? राजा बनने के लिए तो पहले अपनी फील्ड में आप आओ आगे, उसके आगे अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आप उसमें अच्छे से आप अपने और आगे लेके जाओ अपने आप को, तो आप अपने आप उस एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे, और वैसी चीजें आपके साथ मैनिफेस्ट भी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। या आर्यन जी, जो ये मैनिफेस्टेशन की बात आती है, जब भी अपन मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो सूरज का रोल क्या रहता है इन मैनिफेस्टेशंस के अंदर, और एआई कैसे हेल्प कर सकता है? क्योंकि एआई पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। लाइक चैट बॉट्स, ये चैट जीपीटी जैसे जो भी जितने भी टूल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, पीपल आर यूटिलाइजिंग इट फॉर देयर स्किल्स एज वेल, कि स्किल्स अपनी कैसे यूटिलाइज करें।